मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आज हम शुरू करते हैं कुछ सुर्खियां से। बीजेपी टू रिपीट अयोध्या एमएलए ड्रॉप्स 20 फ्रॉम लिस्ट। सिटिंग अयोध्या एमएलए fielded in BJP's seventh list. This is a brilliant one. Government, don't blindly follow West in criminalizing marital rape. This is a clear indication of Manuwad Soch, because these guys don't want to get caught out because of the way they're treating their wives. BJP assets account for 69% of all national parties' combined ADRs. BJP assets highest at 4,800 crore. Congress liabilities most at 49 crore. So folks, if anybody was wondering how centralization of power and how centralization of money is happening, you can see that here. Shah campaigns in Uttarakhand says BJP government known for development. I don't think so. Known only for divisiveness. Akhilesh claims BJP ploy after helicopter held up. Most certainly, India bought Pegasus as part of a defense deal with Israel in 2017. New York Times. Go figure that. Look at how dubiously we are behaving, right? Daughter seeks to avenge Harish's defeat. She's been given a ticket. This is Harish Rawat. Need an honest CM in Punjab, says Kejriwal. We most certainly do, but does he pointing a finger at Channi? He'll be making a mistake. ED set to arrest Delhi Minister Jain ahead of Punjab poll, says Kejriwal. A possibility. India conveys concerns to UK over SFJ referendum. They're playing with fire. PM's Punjab security breach lessons for SPG. The elite protection force should have vetoed the road journey through sensitive areas. Absolutely. The buck stops at the Home Minister. Reschedule first phase of Manipur poll, says Congress. Now that you've done it in, folks, you've done it in Punjab because of Ravidas, you can do it because of a Christian holiday. Ball in centre's court. Himanta on border round. Nothing is sacrosanct there, folks. Penalty, not arrest power to withdraw cases. Bihar plans reforms in liquor law. 8 dead after having hooch in Bihar's Nalanda. Bihar considers easing prohibition penalty. So the same thing happened in UP, folks. This is corruption at the highest level. Just remember, bootlegging is all about moving the money away from the government to the parties, folks. To the parties. Just like it's happening in, you guessed it right, in Gujarat. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इलाहाबाद से लेकर गया, पटना, आरा तक जिस तरह से छात्रों नौजवानों को पीटा गया है, उनके कमरों में घुसकर मारा गया है और उन्हें धमकाया गया है कि खबरदार जो आवाज ऊंची की, वरना जिंदगी भर नौकरी मांगने के लायक नहीं रहोगे। इसे समझने की जरूरत है कि क्या यह किसी राजनीतिक बदलाव का संकेत है। छात्रों के बाद शिक्षकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। खान सर समेत 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। सरकार ने सोचा था कि इससे लड़के लड़कियां डर जाएंगी, वापस लौट जाएंगी, लेकिन हो गया है उल्टा। वो बागी हो गए हैं। आरजेडी की बिहार बंद की अपील ने सूबे का चक्का थाम लिया। सरकार के साथ खड़ी वीआईपी जैसी पार्टियों तक को इसका समर्थन करना पड़ा और नीतीश कुमार बीजेपी की इस हालत पर मजा लेते रहे। इन घटनाओं से देश भर की नजरें एक बार फिर से बिहार की तरफ मुड़ गई। दबाव ऐसा पड़ा कि रेल मंत्री को तुरंत आकर बयान देना पड़ा, कमेटी बनानी पड़ी कि जांच कराएंगे। इलाहाबाद में छात्रों की चमड़ी उधेड़ने के बाद डिप्टी सीएम को कहना पड़ा, हम जांच कराएंगे। मामला दबाने के लिए 2 सब इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिस वालों को सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन इससे न तो बेरोजगारी का मुद्दा शांत पड़ने वाला है और न ही छात्रों का क्रोध। देखते ही देखते जेपी आंदोलन की बात होने लगी, जिसमें पाकिस्तान को धूल चटाने के बावजूद इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर प्रधानमंत्री के आभामंडल को पोंछ दिया था। इस पर तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि मोदी कभी भी इंदिरा गांधी के उस आभामंडल के आसपास भी नहीं पहुंच सके। बिहार के छात्रों का आंदोलन कहां जा सकता है, इसके क्या संकेत हैं और इस पर जारी सियासत क्या कह रही है, इसे समझने के लिए आपको इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। जब जब बिहारी नौजवानों ने बिगुल फूंका है, दिल्ली की हुकूमतें पत्ते की तरह डोलने लगी हैं। इंदिरा ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने शिखर पर इसके ताप को महसूस किया था। फिर मुझे पहले तो ये नहीं समझ में आता हाईजैक का मतलब क्या होता है, क्योंकि अजीब सी बात है। हाईजैक क्या होता है? लोकतंत्र में प्रदर्शन करना और चीजों को करना बिल्कुल जायज है। और दूसरी चीज कि लोकतंत्र में आप ऐसे तो नहीं कर सकते अपनी जायज मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप प्रोटेस्ट करने वाले उन छात्रों के यहाँ हॉस्टल्स में घुस के आप इस तरह से मारेंगे, जिस तरह से आप बर्बरता करेंगे, आप हाथ पांव तोड़ देंगे, आप पांव सुझा देंगे। ये पुलिस राज्य है या लोकतंत्र है?
इस देश को पुलिस राज्य नहीं बनाया गया था। संविधान हमारा लोकतंत्र बनाता है और लोकतंत्र में सारी चीजों को ध्यान रखा जाता है, जनता का ध्यान रखा जाता है, उनके हकों का ध्यान रखा जाता है। और वो कोई गलत मांग नहीं कर रहे, साल भर से उनके साथ में अन्याय हो रहा है, कोई चीज नहीं हो रही है, तो उसको लेकर के और ये मांग है तो इस तरह से घुस करके आप मारेंगे और इस तरह से करेंगे, ये बर्बरता। आप कौन सा देश बनाने जा रहे हैं? आप देश को हत्या करने में तुले हैं। पुलिस राज्य नहीं है, मिलिट्री राज्य नहीं है। मिलिट्री का काम जो है सीमाओं पे है, उस पे काम करे। पुलिस का काम जो है शांति व्यवस्था बनाए रखना है, कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उसका काम जो है हॉस्टल्स में घुस करके पीटना और मारना नहीं है। ये तो पूरी तरह से बर्बरता है और इससे बड़ी बुरी स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। मैं भी अपने स्टूडेंट्स दिनों में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा हूं और मैंने देखा है बहुत सारे हम लोग आंदोलन किया करते थे और सारी चीजें होती थी और उसके बावजूद कभी कुछ नहीं होता था। कभी कोई नए सवाल उठाए जाते थे कि नेशनल सिक्योरिटी और ये होता है। इसका मतलब इतनी निकम्मी सरकार है कि वो सरकार अपने देश को नहीं बचा सकती। क्या डराती है? यदि ये सरकार इतना डरती है तो ऐसी सरकार को इमीडिएट, मतलब निर्लज्जता के साथ में, ऐसी सरकार के साथ में वह बर्ताव। एक बहुत आश्चर्य की बात है कि आज किसी भी अखबार में छात्रों का जो आंदोलन बिहार में कल हुआ, जो भारत बंद हुआ और जिसके पीछे सारी विपक्ष भी लग गया था, कहीं उसका जिक्र नहीं। क्यों ये सरकार डरी हुई है? सरकार इसलिए डरी हुई है क्योंकि जब छात्र और युवा आंदोलन पे आए हैं बिहार से स्पेशली, उनके आगे इंदिरा गांधी की सरकार तक घुटने टेकने पड़े हैं। छात्र क्यों आ रहे हैं? छात्र इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन बेरोजगारी है, वो भूखे हैं, वो भविष्य नजर नहीं आ रहा और उनके ऊपर अब लाठीचार्ज हो रहा है। ये कैसा अन्याय है? ये कैसी सरकार? मैं बताता हूं क्यों ये ऐसी सरकार ऐसे दुरुपयोग करती है अपनी ताकत का छात्रों के लिए। क्योंकि ये अभी भी समझती है कि उस समय और उस काल में रह रहे हैं, या उस काल या समय में हमें ले जाना चाहते हैं जब द्रोणाचार्य जो गुरु थे उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि अपने अंगूठा काट, उसने अंगूठा काट। भाई साहब, ये समय बदल चुका है। यहां पर कोई आपके लिए अंगूठा नहीं काटने वाला। अब तो खाली आपको इनका पेट भरना पड़ेगा, इनका पेट भरना पड़ेगा। तभी करके हम ये कहते हैं, रेल प्रोटेस्ट अ वेक अप कॉल। They cannot be dismissed as either isolated or politically motivated. The indignity of competing against what are very difficult odds, more than 10 million applicants applying for less than 40,000 railway jobs in this case, has been worsened by unnecessary delays, uncertainties and ad hocism in recruitment process, and that's been this sarkar. The pent-up anger and insecurity among India's young job seekers is not going to end with this round of recruitments. Students, many of whom have lost 2 years of learning during the pandemic, forced closure of educational institutions, are going to have an even more difficult time in the job market. It's no accident that the protests roiled 2 of India's youngest states. Immediate corrective action are required, and if these guys know what's good for them, they'll be heeding the call, even though the weakest ever railway minister I've seen, babbling away, has provided no solution at all to the youth of this country. This government better wake up and smell the coffee. तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है, अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हाँ, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ये नहीं जानती कि आम जनता के क्या मुद्दे हैं? आखिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ रोज सुबह उठ के वही जिन्ना को याद करते हैं, पाकिस्तान को याद करते हैं? आज सुबह 9 बजे का उनका ये बयान देखिए जो आपके स्क्रीन पर है, पूरे स्क्रीन पर देखिए। आदित्यनाथ कहते हैं, वे जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्योछावर करते हैं। अरे बाबा जी, कोई और मुद्दा भी उठा लीजिए, वही जिन्ना, वही पाकिस्तान। आपको समझना पड़ेगा कि इस वक्त आपके सामने ढेरों समस्याएं मुंह बाहे खड़ी हैं। क्या आप भूल गए कि यूपीटीईटी यानी कि शिक्षक पात्रता टेस्ट को लेकर किस तरह से पर्चे लीक हो जाते हैं? लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। लखनऊ में बेरोजगार जो है रैलीज निकालते हैं और फिर आपकी पुलिस उन पर लाठियां चलवाती है। क्या आप भूल गए कि प्रयागराज में किस तरह से आपकी पुलिस ने घुसकर हॉस्टल्स में अभ्यर्थियों पर लाठियां और डंडे चलाए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अभ्यर्थी जो हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के मामले में जो कथित धांधली हुई थी या जो गड़बड़ की थी रेलवे बोर्ड ने, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।
मैं जानता हूं कई छात्रों ने उस वक्त कई लक्ष्मण रेखाओं को पार किया जब रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, रेलवेज को आग भी लगाई गई और उन पर एक्शन होना चाहिए। मगर आपको यह बात समझनी पड़ेगी, उन विद्यार्थियों की मनस्थिति को समझनी पड़ेगी। वो लोग एक तो अरसे से यह आंदोलन कर रहे थे कि परीक्षा करवाओ, परीक्षा करवाओ, ट्विटर पर ट्रेंड करवा रहे थे, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था। उसके बाद जब पर्चा होता है तो या तो अच्छा, अब ये सुनिए नेक्स्ट वन। व्हाई अ रिच गुजरात फैमिली पेड 100,000 फॉर इलीगल जर्नी टू यूएस, पुलिस सीक्स आंसर। मैं आपको बताता हूं क्यों। अगर कोई अपना भविष्य नहीं देख रहा है कि वो सुखी है, कि वो आगे क्या है, तो भागेगा। आपको याद होगा सबसे बड़ा भगेड़ू स्टेट पंजाब होता था, क्योंकि वहां पर दहशतगर्दी बहुत थी, वहां पर बेरोजगारी बहुत थी। तो ये एक चीज ही हमें बताती है कि गुजरात ने जो गुजरात का मॉडल, ये जो हमारे जो हैं तो ऊपर चाणक्य और उनके साथ ही जो स्थिति वहां की जमीनी हकीकत गुजरात की है वो सही नहीं है। क्योंकि मुझे पता है, जो आंकड़े आज बता रहे हैं कि पंजाब के बाद जो सबसे बड़ा भगेड़ू स्टेट है वो है गुजरात, वो है गुजरात। और आप पूछिए क्यों, तो फिर क्यों सब कहते रहते हैं गुजरात का मॉडल, गुजरात का मॉडल। मे भी गुजरात का मॉडल लिया कि सभी बगेड़ू बन जाएंगे फिर, ऐसे ही होना चाहिए फिर। सोचिए। और तभी भी आप देखते हैं 55 up workers held for protesting outside BJP headquarters released, and this was in Ahmedabad. Things are not hunky dory there, folks. Ready to discuss pilgrimage site expansion with Pakistan, said MEA. This is a small news, folks. And guess what? Amit Shah is going Jinnah, 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 Pakistan, Pakistan, Pakistan. Hey, where do you tango? Ministry of Home Affairs, Ministry of External Affairs. Hey, this is real top level BS. SP incited riots. PM pursued Charan Singh's dreams. Does Yogi even know Charan Singh, right? Bengal BJP suspends Majumdar and Tiwari for violating party discipline. Let me just tell you, a party that's now looking no different than anybody else. In fact, just worse than everybody else. They're gonna splinter because they got so many power centers developing because of all these people they've taken it. Azam Shivpal figure in SP's first list. So here's the deal, man. Azam Khan, they're not afraid of, and Shivpal back in. SP urges poll panel to ban UP opinion polls. Yeah, maybe. BJP banks on welfare plans to win SC votes. Let me just tell you, the SCs have figured out that they don't want to be beggars. They are owed this. They are owed this. They are citizens of this country. They cannot be left out in the cold. But what they want is jobs and be able to earn their own living. But what this government wants is to beggar them all. Jai Hind. दोस्तों नमस्कार, मैं सूर्य प्रताप सिंह। लुटिया डूबी जाए सजन तेरी, लुटिया डूबी जाए ओ जोड़ में तेरी, लुटिया डूबी जाए। जोड़ कहते तालाब को, तालाब के पानी में लुटिया डूबी जा रही है। भाई किसकी लुटिया डूब रही है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पे खड़ा है। गांव गांव में पोस्टर लगे हैं, नारे लगे हैं। गांव गांव में लोगों ने अपना एक विजिलेंट ग्रुप बना लिया है कि बीजेपी का विधायक या प्रत्याशी गांव में घुसना नहीं चाहिए। मैं अमेरिका से आके सीधे पश्चिमी उत्तर प्रदेश गया और वहां के कई गांवों में कई दिन तक घुमा हूं, आज ही लौटा हूं मैं। आपने कुछ वीडियो भी मेरे देखे थे, और भी वीडियो हैं जो डालूंगा मैं समय समय पर। भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वर्सेस नॉन जाट हिंदुओं में कराना चाहती है कि भाई जाट के अलावा और बाकी सारे हिंदू इकट्ठे हो जाओ, जाटों को अलग कर दो। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाटलैंड कह रहे हैं। किसान की बात नहीं कर रहे हैं, वो किसान जो साल भर से ज्यादा समय तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा। अब बीजेपी के प्रधानमंत्री या देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री, इनको सुध नहीं आई किसान की, और अब पीछे पीछे थूक लगा के पर्चे बांटते फिर रहे हैं, कोरोना बांट रहे हैं। देख रहे कैसे ट्रोल हो रहे हैं। अभी इतनी सोच समझ तो मैं कहता हूं कि 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे को भी होगी। कोरोना कालखंड है, इसमें थूक लगा के पर्चे बांटने का मतलब वायरस का संक्रमण का फैलाव करना। केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसको संक्षेप में केंद्रीय का चुनाव का चू
और आयोग का आ, ये अगर ले लो तो केचुआ बनता है। तो केचुआ को